Hello students, this is Omkar Tomar, your English and IT teacher, and this video is going to be on Information Technology 402 for class 10th. This video is about very important shortcut keys of Microsoft Word 2010 under MS Office 2010. So students, don't forget to subscribe this channel and press the bell icon to get the latest videos on English and information technology. Students, many of the times we think to do something quickly on our computer, but we always cram for the menu bar, for the options, for the submenu options, but it may be that we couldn't find these all options. But I am providing you the simple and important shortcut keys while making the document, while typing on the page under Microsoft Word. So students, this video is also going to be very important for the office workers and teachers also, who always cram for taking symbols etc. in mathematics question papers while they make, and physics, chemistry etc. Actually, whenever we cram for these symbols, we always go through the menu bars etc., and it may be that we couldn't find these all symbols. But in this video you will see the important shortcut keys of adding everything, every single bit of these symbols. So students, let's start. Keyboard shortcut Word 2010. First of all, ribbon and menus. If we want the ribbon, like on which we see bold, italic, underline icons, if we want to hide or show this ribbon, we can use from the keyboard Control plus F1. If we want to activate the tabs like file, animations, slideshow, review, edit, format etc., we can press Alt and the same letter, just like Alt plus F for file, Alt plus E for edit, Alt plus F for Alt plus S for slideshow etc. And but this is for MS Word 2010. If the shortcut menu opens, we can hide it by pressing escape, cancel for escape. Show shortcut menu. Any shortcut menu, if you want on your screen, you can press Shift plus F10. Now file menu, file options. You want new file, Control N. You want to save the file, Control S. If you want the save as dialog box, you directly can press F12. You will find save as dialog box. Type the name and click on save button or press enter to save your file with a different name. Open file, Control O. You can open the existing file by pressing Control O. While you want to print, Control P. If you want to close the particular file, students, if you have opened 3 files, आपने 3 फाइल खोली हुई हैं MS Word में, आप उसमें से एक फाइल क्लोज करना चाहते हो, आपको पूरा MS Word क्लोज नहीं करना, MS Word के अंडर में फाइल क्लोज करनी है, तो आप Control W प्रेस कर सकते हैं. Now the second column is for editing. Delete to left. If you want to delete left character, backspace. Delete right character, delete. Delete previous word. आप पिछला वाला पूरा वर्ड डिलीट करना चाहते हैं एक वर्ड, तो कंट्रोल
के साथ आप बैक स्पेस दबाएंगे तो पूरा एक वर्ड एक ही बार में डिलीट हो जाएगा। डिलीट नेक्स्ट वर्ड, तो कंट्रोल प्लस डिलीट दबाएंगे तो आगे वाला पूरा वर्ड डिलीट हो जाएगा। कट कंट्रोल एक्स, कॉपी कंट्रोल सी, पेस्ट कंट्रोल वी, फाइंड कंट्रोल एफ, फाइंड नेक्स्ट कंट्रोल ऑल्ट कंट्रोल वाई, रिप्लेस कंट्रोल प्लस एच। आप कभी भी चाहते हैं एक डॉक्यूमेंट में एक वर्ड आ रहा है, बार 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 वर्ड आ रहा है, जस्ट लाइक राम 4 बार आया हुआ है, तो आप उसको श्याम में बदलना चाहते हैं तो आप कंट्रोल एच दबाएंगे। कंट्रोल एच दबाने से विंडो खुलेगी। आप उस विंडो में आप ऊपर जो फाइंड वर्ड डालेंगे उसमें राम और रिप्लेस विद में डालेंगे श्याम, और आप रिप्लेस ऑल पे क्लिक करेंगे तो सब एक ही बार में रिप्लेस हो जाएगा। आपको ये माउस से जाने की ज़रूरत नहीं है, कीबोर्ड शॉर्टकट से आप बहुत सारे काम कर सकते हैं। कई बार हम कुछ काम कर देते हैं तो उसको वापस जाने के लिए कंट्रोल जेड प्रेस करते हैं, लेकिन किसी काम को वापस बार बार करने के लिए कंट्रोल वाई हम कर सकते हैं। नाउ सेलेक्टिंग टेक्स्ट, टेक्स्ट को सेलेक्ट कैसे करते हैं? F8 इम्पोर्टेंट की है सिलेक्शन के लिए। अगर आपको एक वर्ड सेलेक्ट करना है जहाँ पर आपका कर्सर होता है तो F8 को 2 बार प्रेस करेंगे तो वो वर्ड सेलेक्ट हो जाएगा, 3 बार प्रेस करेंगे तो पूरा सेंटेंस सेलेक्ट हो जाएगा, 4 बार प्रेस करेंगे तो वो पूरा पैराग्राफ सेलेक्ट हो जाएगा। F8 प्रेस करना है। और पूरा डॉक्यूमेंट अगर आपको करना है तो कंट्रोल A या फिर F8 को 5 बार आपको प्रेस करना पड़ेगा। Now movement keys. Movement keys, when we want our cursor across or down, तो shift with cursor keys. There are 4 arrow keys. आप इनको 4 arrow keys को यूज़ कर सकते हैं। If you want to reach end of the line, जिस लाइन में कर्सर होता है उसके एंड में जाने के लिए shift plus end. Beginning of the line, shift home. End of the document, शिफ्ट कंट्रोल एंड। 1 पैराग्राफ आपको जाना है डाउन में तो शिफ्ट कंट्रोल क्वेश्चन मार्क। 1 पेज, शिफ्ट पेज डाउन। टॉप ऑफ प्रीवियस पेज, पिछले पेज के टॉप में जाना है तो कंट्रोल प्लस पेज अप। नेक्स्ट पेज के टॉप में जाना है तो कंट्रोल पेज डाउन। प्रीवियस विंडो पे कंट्रोल शिफ्ट F6। नेक्स्ट स्क्रीन पे पेज डाउन। आपके सामने जो स्क्रीन खुली है, जितना डॉक्यूमेंट सामने बना हुआ है उससे आपको नीचे वाले पार्ट पे जाना है जो आपने टाइप किया हुआ है, तो आप पेज डाउन को करके जा सकते हैं और फिर ऊपर जाना है तो पेज अप पे जा सकते हैं, पेज अप बटन से। बॉटम ऑफ द विंडो, ऑल्ट कंट्रोल पेज डाउन। टॉप ऑफ विंडो, ऑल्ट कंट्रोल पेज अप। टॉप ऑफ डॉक्यूमेंट, कंट्रोल होम। कंट्रोल होम मीन्स आप उस डॉक्यूमेंट के स्टार्टिंग में जा सकते हैं, कंट्रोल एंड से उस डॉक्यूमेंट के बिल्कुल एंड पे जा सकते हैं। हाँ, आपको पर्टिकुलर पूरे डॉक्यूमेंट में सपोज 200 लाइन है, आपको किसी पर्टिकुलर लाइन पे जाना है या किसी पर्टिकुलर पैरा पे जाना है, यू विल प्रेस कंट्रोल प्लस G, तो गो टू वाला ऑप्शन खुलेगा। उसमें आपसे पूछेगा कहाँ जाना है, लाइन पे, पैराग्राफ पे, पेज पे जाना है, तो उसमें एंटर कीजिएगा। उसमें आप टाइप कीजिएगा कि सपोज़ पेज नंबर 1 पे 6 लाइन पे जाना है, तो आप उसमें डाल के उसको एंटर करेंगे तो आप उस पर्टिकुलर प्लेस पे पहुंच जाएंगे। नाउ स्पेल चेक एंड थेसर्स। स्पेलिंग चेक के लिए आप F7 प्रेस करेंगे तो स्पेलिंग चेक वाली विंडो खुल जाएगी और आपकी सारी स्पेलिंग चेक होती चली जाएंगी। आप नेक्स्ट करके जो स्पेलिंग चेंज करनी है, आपको डाउट है उसको चेंज कर सकते हैं, इग्नोर करनी है इग्नोर कर सकते हैं। नेक्स्ट कॉलम इज़ व्यूइंग अ डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंट को देखना कैसे है? आप किसी डॉक्यूमेंट को नॉर्मल व्यू में देखना चाहते हैं, ऑल्ट कंट्रोल N प्रेस करेंगे। आउटलाइन व्यू में देखना है, ऑल्ट कंट्रोल O प्रेस करेंगे। प्रिंट लेआउट व्यू में देखना है तो ऑल्ट कंट्रोल P प्रेस करेंगे और विंडो को स्प्लिट करना है तो ऑल्ट कंट्रोल S। इन ओपन एंड सेव डायलॉग बॉक्सेस, ओपन और सेव डायलॉग बॉक्सेस में आपको कुछ व्यू करना है तो उसके व्यूज़ के लिए आपको ऑल्ट F5 प्रेस करना पड़ेगा। लुक इन के लिए आपको लिस्ट मीन्स दिस इज़
विंडो की, लिस्ट प्लस F4, क्रिएट न्यू फोल्डर, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप नया फोल्डर क्रिएट करना चाहते हैं कहीं भी तो ऑल्ट F4 से आप कर सकते हैं। सॉरी प्रीवियस फोल्डर पे अगर आप जाना चाहते हैं तो ऑल्ट 1, अप 1 लेवल जाना चाहते हैं तो ऑल्ट 2, अपडेट फाइल लिस्ट F5। Now inserting the things in the document. If you want to insert date, press Alt Shift D, line break Shift plus Enter, page break Control plus Enter, font dialog box Control D. If you want to change the formatting of font, press Control D. You will not need to go under edit menu or format menu for the formatting of font. Clear manuals Control space bar, ये formatting clear कर देता है। Copy formatting Control Shift C, आपने एक वर्ड लिखा, उस वर्ड के ऊपर आपने बोल्ड, इटैलिक और अंडरलाइन ऑप्शंस अप्लाई कर दिए। वही ऑप्शंस आपको एक ऐसे वर्ड पे अप्लाई करने हैं जो सिंपल लिखा हुआ है, तो आप उस वर्ड को सिलेक्ट कीजिए जिस पर आपने बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन प्रेस किया था, और वहाँ पर उसको सेलेक्ट करने के बाद कंट्रोल शिफ्ट सी आप प्रेस कीजिए। वो फॉर्मेटिंग जो उसमें थी, उसका जो फॉर्म था वो कॉपी हो गया है। अब आप दूसरे वर्ड पे जाके उसको अप्लाई कर सकते हैं। पेस्ट फॉर्मेटिंग कंट्रोल शिफ्ट वी, चेंज केस मीन्स और चेंज केस, सेंटेंस केस, लोअर केस, टॉगल केस एटसेट्रा। शिफ्ट F3, ऑल कैप्स, सारे लेटर्स कैपिटल हो जाएंगे अगर आपने स्मॉल में भी टाइप किए हैं। कंट्रोल शिफ्ट A से बोल्ड कंट्रोल B, इटैलिक्स कंट्रोल I, स्मॉल कैप्स। अब ऑल कैप्स और स्मॉल कैप्स में क्या डिफरेंस होता है? ऑल कैप्स सब कंप्लीट कैपिटल होंगे, स्मॉल कैप्स में होंगे तो सारे कैपिटल, बट हर वर्ड का जो फर्स्ट लेटर होगा उसका साइज बाकी से थोड़ा ज़्यादा होगा। सबस्क्रिप्ट जैसे लिखते हैं हम लोग 15 अगस्त, तो 15 के बाद जो TH आता है, सॉरी सबस्क्रिप्ट मीन्स जो जिसे हम H2O लिखते हैं, वाटर का फार्मूला, तो जो 2 होता है थोड़ा नीचे होता है साइज में, उसको सेलेक्ट करके आप कंट्रोल इक्वल प्रेस करेंगे तो वो सबस्क्रिप्ट में आ जाएगा। सुपरस्क्रिप्ट ऊपर ले जाना चाहते हैं तो कंट्रोल शिफ्ट इक्वल, जैसे 15 में TH होता है। सिंबल फॉन्ट कंट्रोल शिफ्ट Q। नाउ वेरी वेरी इम्पोर्टेंट, क्योंकि हम लोग हमेशा फोल्डर्स को क्रिएट करना, नए फोल्डर में कुछ डालना, बहुत ज़्यादा हमें ज़रूरत पड़ती है इसकी। तो हम लोग अगर नया फोल्डर क्रिएट करना चाहते हैं तो कंट्रोल शिफ्ट N आप कहीं प्रेस करेंगे अगर, तो नया फोल्डर क्रिएट हो जाएगा। आपको वापस मेन्यू में जाके फोल्डर क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं रहेगी। अंडरलाइन कंट्रोल U, अंडरलाइन वर्ड्स ओनली। मान लीजिए पूरी लाइन में जो वर्ड के नीचे अंडरलाइन आएगी, जहाँ स्पेस दिया हुआ है वहाँ अंडरलाइन नहीं आएगी, तो कंट्रोल शिफ्ट W। ये सारे काम टेक्स्ट को सेलेक्ट करने के बाद ही होते हैं। डबल अंडरलाइन डालनी है तो कंट्रोल शिफ्ट D। अब फॉन्ट का साइज 1 पॉइंट बढ़ाना है हमने, तो सेलेक्ट करने के बाद कंट्रोल प्लस अब क्लोजिंग ब्रैकेट, जो बिग ब्रैकेट होता है वो क्लोजिंग वाला डालना है। श्रिंक करना है 1 पॉइंट कम करना है तो कंट्रोल प्लस बिग ब्रैकेट जो स्टार्टिंग वाला होता है। ग्रो फॉन्ट टू नेक्स्ट अवेलेबल साइज। अवेलेबल साइज का मतलब है फॉन्ट वाले बॉक्स के अंदर जहाँ फॉन्ट का साइज आता है 8, 10, 12 इस टाइप से होता है। अगले साइज में बढ़ाना है किस चीज़ को, तो सेलेक्ट करने के बाद कंट्रोल प्लस ग्रेटर देन, कम करना है तो कंट्रोल प्लस लेस देन। फॉर्मेटिंग पैराग्राफ्स, क्लियर मैनुअल पैराग्राफ फॉर्मेटिंग, कंट्रोल Q से सारी हमारे द्वारा की गई जितनी भी फॉर्मेटिंग होती है वो क्लियर हो जाती हैं। लेफ्ट अलाइनमेंट कंट्रोल L, जस्टिफाई कंट्रोल J, राइट अलाइन कंट्रोल R, सेंटर पैराग्राफ कंट्रोल E। सिंगल स्पेसिंग, आपको एक सिंगल स्पेस देना है तो कंट्रोल 1, सबको सेलेक्ट करके आप कंट्रोल
1 कर सकते हैं। मतलब सिंगल स्पेसिंग का मतलब यहाँ पर है लाइनों में आपको स्पेस देना है, तो कंट्रोल उस पूरे पैराग्राफ को सेलेक्ट करके कंट्रोल 1 दबाएंगे तो लाइनों में एक लाइन का गैप आ जाएगा। 1.5 लाइन का स्पेस चाहिए तो कंट्रोल +5, डबल स्पेस कंट्रोल +2। If you want to increase indent of paragraph, कंट्रोल M। इंडेंट का मतलब होता है जैसे हम लोग पोएम्स लिखते हैं तो 4 लाइनें इस साइड में होती हैं, 4 लाइनें इस साइड में होती हैं, तो वो लेफ़्ट और राइट करने के लिए इंडेंट को घटाने बढ़ाने के लिए आप कंट्रोल M का यूज़ कर सकते हो। डिक्रीज़ करना है इंडेंट को, कंट्रोल शिफ्ट M। हैंगिंग इंडेंट, हैंगिंग इंडेंट होता है कि एक लाइन बहुत बड़ी होती है, उसके नीचे बाकी सब लाइनें छोटी होती हैं, उस टाइप का पैराग्राफ चाहिए तो कंट्रोल T। डिक्रीज हैंगिंग इंडेंट, कंट्रोल शिफ्ट T। नाउ मैनेजिंग वर्ड विंडोज़, विंडोज़ को मैनेज कैसे करते हैं। आपको वर्ड की नेक्स्ट विंडो चाहिए, कंट्रोल F6। प्रीवियस विंडो, कंट्रोल शिफ्ट F6। मैक्सिमाइज वर्ड विंडो, आपको मैक्सिमाइज़ करना है और मिनिमाइज़ करना है, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आपको वर्ड विंडो है साइज़ में छोटी विंडो है, उसको बड़ा करना है तो ऑल्ट F10 से कर सकते हैं। रिस्टोर वर्ड विंडोज़, फिर से उसको मीन्स फुल साइज पे लेके आना, रिस्टोर करना है तो ऑल्ट F5। क्लोज विंडो, कंट्रोल W। नाउ we always feel difficulty in typing some important symbols in MS Word. So let's remove the problem of these symbols. Common symbols, ellipsis आपको चाहिए तो कंट्रोल ऑल्ट कंट्रोल और पॉइंट आप दबाएंगे। एन डैश आपको चाहिए, कंट्रोल और नम पैड आप दबाएंगे। एम डैश चाहिए तो ऑल्ट कंट्रोल नम पैड आप प्रेस करेंगे। ट्रेडमार्क साइन इफ़ यू वांट, Alt Control T। कॉपीराइट साइन इफ़ यू वांट, Alt Control C। आप जहाँ भी प्रेस करेंगे आपकी लाइन में कॉपीराइट का सिंबल आ जाएगा। रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क वाला सिंबल आपको चाहिए जहाँ सर्कल में R होता है, कंट्रोल Alt Control R आप प्रेस करेंगे। नाउ यूज़ नम लॉक ऑन एंड नम पैड फॉर द फॉलोइंग। नंबर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये। आपको इंग्लिश पाउंड अगर चाहिए, इंग्लिश पाउंड का सिंबल चाहिए तो ऑल्ट 156 प्रेस करेंगे। हाफ चाहिए आपको 1/2 वाला, ऑल्ट 171। 1/4 क्वार्टर वाला चाहिए तो ऑल्ट 172। डिवीज़न मार्क के लिए ऑल्ट 246। डिग्रीज के लिए ऑल्ट 248। स्मॉल बुलेट्स ऑल्ट 249। Power of 2, if you want power of 2, Alt 253. Word count, if you want to see how many words are totally in your document typed by you, you can press Ctrl Shift G. This dialog box will tell you the counting of all the words in your document. So students, I think this video is very important for you. आप इसको शेयर ज़रूर करना, लाइक और सब्सक्राइब भी करें और इस इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन को दूसरों तक ज़रूर पहुंचाएं, क्योंकि ज्ञान हमेशा बांटने से बढ़ता है। Okay students, thanks for watching this video. Don't forget to subscribe the channel and press the bell icon. Also share the video to others and you will get the new things forever from this channel.